Well, the teaser has been so loud, and so will the song be, I'm sure. And all are eagerly waiting to witness that, to hear that, to see that. Very special here on stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the man behind it all, our very, very own director, Mr. Kabir Khan. Good evening. Good evening. Thank you for being here. Wow, so the teaser looks amazing. We've been watching it for quite some time now. Thank you. How was your overall experience and what was the response? That we'd like to know. I think the teaser was very warmly received. We were very happy with the way it was received. We were very clear that we wanted to set out the world, show the world in which the story is set, show the character that Salman will be portraying in the teaser, so that everybody's clear about the canvas of the film. And that's really worked well for us, because I think people have really reacted very positively to the way Salman is acting and being seen in this teaser, and also the sort of backdrop of this film, the locations and the atmosphere in which the story is set. And there were 1,000 dancers. My God, how did it go? That only Remo can handle. I'm going to ask that question again now. If I get 1,000 extras, I start sweating. I don't know how he handles so many dancers. But that's totally all credit to Remo to be able to handle a song of this scale. We've done it, really successfully earlier in Selfie Le Le Re in Bajrangi. So obviously, when we had a song of this scale, the natural choice was Remo, and I think he's done it all over again. Lovely. So thank you so much for sharing your thoughts with us. I request you to please stay back here with me. I request everyone there to please switch off your cameras, because something very special is going to be played here. Very warm welcome to all of you. I am actually eagerly waiting to ask this question to Remo, sir. So I'm starting with you, sir. How was the overall experience? The hook step. We really want to see Remo, sir, doing the hook step. Yeah? Yes or no? So first we would like to... Overall experience बहुत कमाल का था, and of course इसके पहले हम काम कर चुके थे कबीर सर के साथ, सेल्फी में किया था, and जब इस बार भी मुझे फ़ोन आया तो ऐसे ठीक है मैं सेट पे जाके मिलता हूँ, and when I went on set it was huge. हमें बहुत बड़ा सेट था, उनका यहाँ पे करना है गाना, ऐसे ये गाना सेलिब्रेशन गाना है तो of course बहुत सारा ये पूरा भरना पड़ेगा, तो बहुत सारे डांसर्स लगेंगे, बहुत सारे जूनियर्स लगेंगे. I said yes, we have to make it big in this thing. And brief दिया, जिस तरीके से brief दिया उस तरीके से गाना set किया, and then now you can see it on screen, and it was fun doing this song. It was undoubtedly fantastic, and now yes, we would love to see that step once. Come on, people! Yeah. Can you cheer him up? We should have Pritam also do it. प्रीतम भी बहुत अच्छा करता है. बहुत अच्छा करता है प्रीतम का. Step. प्रीतम दा आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा, सजन रेडियो बजाई के सभी को नचाइयो जरा. Whoa! Only you can do that. Hats off to you. Can all the RJs come and do this? Yeah. छुप जाते हो माइक के पीछे, अब आओ यहाँ सामने कैमरे के सामने नाचो. बहुत ही सिंपल है, आई थिंक सभी कर सकते हैं इसको. आ जाओ चलो. चलो वेरी गुड. बस एक. कम ऑन सिर्फ एक. सब आयो यार आरजे. चलो मेरे साथ सब लोग. कम ऑन. बस कम दो. ऑन गेट अप. इतने सारे चैनल्स और सिर्फ दो. कौन है ये देखो ये. हाँ. कम ऑन चलो. नहीं, I think we'll go with Pritam. सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा, सजन रेडियो बजाई के सभी को नचाइयो जरा, सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा. Whoa! Let's have a huge round of applause. Thank you. And thank you so much, guys, for joining us. All right. Next, we all would want to know from Amitabh and Pritam da. Sir, आपने ये कैसे create किया, and while creating the song, what was the experience?
working with Kabir is always fun. I've like always worked with him. So वो एक टीम बन गया और अमिताभ हमारे साथ फैंटम में काम किया और बजरंग भी में किया. So ये गाना बनाने के बाद तो obviously अमिताभ came up with the hook. साजन रेडियो पे कैसे तू hook में आया that you मतलब as usually it happens, I write on दादा's tunes, तो धुन बदन दी थी and brief था basically. तो मैं सोचा कि क्या किया जब जिस वक्त की कहानी है celebration और entertainment information का सबसे जो common जो medium था that was radio. तो एक पब्लिक प्लेस पे अगर सेलिब्रेशन हो रहा है कुछ तो उसमें रेडियो का कनेक्शन है. नॉट टू मेंशन कि आज के ज़माने में भी मतलब रेडियो की खास जगह है मेरी ज़िंदगी में. सो इट वाज क्वाइट अ क्यूट हुक. सजन रेडियो बजाइयो जरा एंड कबीर लाइक्ड इट, दादा लाइक्ड इट एंड इट वर्कड. आई थिंक अभी सब रेडियो स्टेशन को ये कट के गाने रेडियो आप लोग आपका जितना मन चाहे आप नाम डाल के बजा सकते हो. हाँ बजा सकते हो जितना मन चाहे. और क्या ये फिल्म वाज बेस्ड इन लाइक अर्ली लाइक इट हैज अ 62. सो इसका ऑर्केस्ट्रेशन में भी आप अगर आप एंड इट्स बेस्ड इन लिटिल ब्रिटिश era, that colonial time. So with that Indian, we have used accordion and the kind of orchestration we've done, which reminds you of that era. Even the Antara, which is not there in the promo, is a very like a very melodious classic type Antara. So we have kept that feel all through कि ये फिल्म के साथ भी एकदम जाए, so that और आज का ऑडियंस के साथ भी जाए, आज भी सब एंजॉय करे और मूवी के स्क्रिप्ट के साथ भी जाए. Right, it's a beautiful song, and Salman is actually looking like a child in the song. You know, that innocence exudes, you know, when he dances, when he gives those expressions. All right, so moving on to Sanujit sir. आप बताइए कैसा experience था? How was the overall response? See, when we first heard the song, that was our expression. That image of Salman, we were completely overjoyed, and the idea of having this entire listening, pre-listen setup was born from that first listen that we did. It's an incredible experience for us to be working with Pritam again, because he's like a man with a Midas touch. Amitabh, and also our first project with Kabir Khan, and also with Salman Khan. So it's something really special for Sony Music. True, true. Wow. And Amar sir, the most important thing, on May 16th, in Dubai, what would you like to share with us about that? So this is the first time that any film out of India will launch a song outside the country. I think for us it was really important because usually when we release a film on Eid, our promotion time is the month of Ramzan, and we unfortunately can't do much there. And that's a market that shows a lot of love for Salman as well. 30-40% of our business in the overseas market comes from the Gulf. And we really wanted to reach out to his fans there. So yeah, this time we're going to go. We all leave in a few days and we're going to go make a lot of noise there with Salman. And we have our fingers crossed. We hope that audience loves the song as well. Lovely, lovely. And I'm sure that you all must be having a lot of questions. So I would now like to announce an open forum and you can ask whatever questions you... और रेमो सर से भी है कि जब सेल्फी आपने किया, उसके बाद ये बहुत बड़ा एक आपके लिए टफ चीज़ रही होगी कि अब उससे बेहतर हम क्या दे दें. तो इसके लिए कितना तैयार थे और रेडियो बजाइयो जरा के लिए किस तरीके से आप दोनों ने कोरियोग्राफ किया और गाना बनाया? पहले म्यूजिक बना तो यही बोलेंगे. हाँ. अभी वो प्रेशर पहले क्या वो प्रेशर अगर मैं रखता था तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता मेरा लाइफ में. मैं अभी 115 फिल्म्स तक कर चुका हूँ और तो मेरा कभी भी कोई भी गाना बनाने के पहले जो मेरे को इंस्पायर करते हुए स्क्रिप्ट. और मैं ये हमेशा बोल चुका हूँ, आई थिंक एनी म्यूजिक इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. हम अकेला कुछ नहीं कर सकते. इट्स द डायरेक्टर एंड द म्यूजिक डायरेक्टर एंड द लिरिसिस्ट. तो इसमें कबीर के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ और कबीर इज़ वेरी एक्सट्रीमली इंस्टिंक्टिव अबाउट म्यूजिक को. और कबीर बैलेंस करता है कि फिल्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और गाना आपको सुन के मज़ा भी लगना चाहिए, लेकिन आप हमेशा कबीर का
कोई भी earlier films ही ले लीजिए, it is an integral part of the movie. He thinks that way. So I have also started thinking like him after, I think this is our 4th project from New York. I knew the kind of song which will fit in this. इसमें कोई सेल्फी का हैंगओवर नहीं था कि सेल्फी किया है बजरंगी, because Bajrangi is another film and this is a completely different kind of movie. So according to the situation, एक celebration situation था. According to the situation, whatever came in my mind, I presented a few tune to Kabir and he chose this one. And after that, Amitav इसके ऊपर काम किया और he came up with the hooks, Hajan Radio बजाइए बजा ज़रा. So this is a process how any song is made actually. Exactly, I think प्रीतम दा ने सब बोल ही दिया. मुझे इनको स्क्रिप्ट इंस्पायर करती है, मुझे म्यूज़िक इंस्पायर करता है जब मैं कोरियोग्राफ करता हूँ. म्यूज़िक से प्रीतम दा ने मुझे इंस्पायर कर दिया. कैरेक्टर कि इस गाने में कौन डांस कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट सलमान खान डांसिंग बट व्हाट इज़ ही प्लेइंग इन दैट फिल्म. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गाना किस पे कोरियोग्राफ करना है. तो वो कैरेक्टर इंस्पायर करता है एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर टू मेक हिम डांस इन द फिल्म. सो कबीर सर, पोस्टर आए फिर टीजर आया, अभी गाना आ रहा है, ट्रेलर कब आ रही है? वेरी सून. ये एक्चुअली जो पैटर्न है ये हमने बजरंगी में भी फॉलो किया था. पहले टीजर निकाला था, फिर सेल्फी थिएट्रिकली रिलीज किया था और फिर ट्रेलर आए थे. वी फॉलोइंग द सेम पैटर्न नाउ हियर. सो ऑन द 24th विल कम आउट विद अ थिएट्रिकल ट्रेलर. मेरा सवाल रेमो सर से है. गाने में डांस के जो स्टेप्स हैं थोड़े रेट्रो नज़र आ रहे हैं, जैसे भगवान दादा का 1-2 स्टेप. तो ये इंटेंशनली क्योंकि रेडियो रेट्रो वो कुछ जुड़ाव है? बड़ा अजीब हो जाता अगर मैं आज के स्टेप डाल देता उस पर, क्योंकि इस फिल्म इज़ अबाउट 62. तो मुझे आई हैड टू स्टिक टू दैट जॉनर. और उस टाइम पे जो चलते थे ज़्यादातर जो भगवान दादा की टाइप के स्टेप्स काफ़ी चलते थे, तो वही दिमाग में रख के उसी तरीके से कोरियोग्राफ किया इसको. आप भगवान दादा के फैन रहे हैं? ऑफ कोर्स, कौन नहीं है उनके. डांसिंग में आई थिंक सबसे पहले अगर हमारे यहाँ के डांसिंग स्टार हैं कोई, तो आई थिंक भगवान दादा हैं. तो ऑफ कोर्स उनका कौन, स्पेशली मैं तो हूँ ही फैन बहुत बड़ा. अच्छा, सलमान खान ने खुद कुछ ऐड किया है इस गाने में स्टेप्स में? क्योंकि उनके हमेशा स्टेप सिग्नेचर स्टेप्स बन जाते हैं. तो अच्छा, ये मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं, इसमें कुछ ऐड नहीं किया. रेमो जी, हाय, दिस इज अंकिता. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी आप सलमान के साथ सलमान को कोरियोग्राफ करते हैं, लाइक पहले आपने सेल्फी ले रहे में किया है, वो ऐसे स्टेप्स करते हैं कि जो कॉमन पब्लिक कर सकती है. तो आप जब भी सलमान को कोरियोग्राफ करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं सो दैट यू नो विच एवरीबडी कैन डू? आई थिंक सलमान सर जो भी स्टेप करते हैं वो भले मेरे साथ करें या किसी और के साथ करें, वो सिग्नेचर बन ही जाता है. कैसे भी कुछ भी स्टेप दो वो. बट आई मेक श्योर कि वो वैसा स्टेप करें जो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि सभी लोग डांस करें उनके साथ. जब वो देखें, जब गाना सुने, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी वो ये गाना बजे तो सबको पता होना चाहिए कि इस पर क्या स्टेप होता है. तो सिंपल होना चाहिए ताकि सभी कर सकें, बच्चे से लेके बड़े लोग, आप लोग भी जैसे अभी आपने किया एकदम सिंपली. सो या Pritam da, my question is to you. We love the song really. Does Arijit have a song in the film? We have just dubbed one song, so we don't even know what will be the singer thing. So, all right, thank you. One we will come to one song. Then this song. ये गाना है कमाल खान और अमित मिश्रा. उस मर्ज वर्स है. कमाल आर खान नहीं, कमाल खान. या मेरा क्वेश्चन कबीर सर से है. हाय, यहाँ पे सोनू. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट चाइना में कब रिलीज़ होगा, उसका कोई रिलीज डेट, और उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल दे पाए हमें तो. देखिए, चाइना का सिस्टम ऑफ रिलीज जो है वो अलग सिस्टम है. उनका कोटा सिस्टम है जिसमें एक साल में सिर्फ 32 फिल्में जो चाइना के बाहर प्रोड्यूस हुई हैं वो रिलीज़ होती हैं. तो आप कोई भी ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता डेट. वो डिपेंड करता है, वो सबमिट हम करेंगे, वो देखेंगे, अगर वो कोटा में आएगी तब फिर वो नेगोशिएशन होके फिर डेट सेट होती है. और चाइना वर्जन में डब कौन करेगा आपके हिसाब से? चाइना वर्जन तब बनेगा जब पहले वो एक्सेप्ट करें. एक बार वो रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बन जाएगा, फिर ये सब बातें डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे. और ऐसी खबरें आ रही है कि जैकी चैन का नाम आ रहा है कि वो डब कर सकते हैं.
अगर करें तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अमिताभ सर, मुखड़ा और दोनों 2 या 3 अंतरे जितने भी होंगे, कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? थोड़ा वो प्रोसेस बताएं आप। मुश्किल सच पूछिए उतना हुआ नहीं, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि मतलब कोई इंस्पिरेशन है क्या। मेरे लिए प्राइमरीली हमेशा धुन से आती है, तो दादा की जो ये धुन थी इस पे थॉट जल्दी आया, प्लस स्क्रिप्ट में जैसे रिक्वायरमेंट है कि भाई रेडियो वाज फिटिंग द बिल बेटर। मतलब आप ऐसे सिचुएशन में अगर 62-65 की कहानी है तो आप वहाँ सेल्फी नहीं डाल सकते, आप डीजे वाले बाबू नहीं डाल सकते, तो रेडियो सही बैठ रहा था। एंड अपने आप मतलब जो थॉट्स है वो स्मूथली है, मतलब ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी इस गीत को करने के लिए। रेडियो एक्चुअली काफ़ी इंटेग्रल पार्ट है पूरी स्टोरी टेलिंग का भी, बिकॉज 62 में है, जंग हो रही है, तो रेडियो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़, तो वो आता जाता रहता है पूरी फिल्म में। कबीर सर, किशन सर, जिस तरह से बाहुबली का कलेक्शंस हुआ है, तो आपको प्रेशर्स फील करेगा अभी ट्यूबलाइट्स के लिए? नहीं सर, वैसी जिंदगी में प्रेशर है, बाहुबली का प्रेशर भी ले लें हम तो नहीं। कलेक्शंस ऑनेस्टली कभी हम किसी मतलब एवरीबडी वांट्स ए फिल्म टू डू वेल, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं चाहते कि हम 200 300 400 करोड़ करें, लेकिन यू कांट मेक अ फिल्म कीपिंग दैट इन माइंड, बिकॉज ऑनेस्टली यू नो जैसे प्रीतम ने भी कहा, अगर वो हम प्रेशर ले लेना तो आई थिंक फिर गलत डिसीजंस लेंगे। अगर मैं प्रेशर ले लेता कि एक मेरी जो भी फिल्म पहले हिट हुई है उसी की तरह मैं बनाऊँ, तो हो सकता है वही करता रहता, एक्शन फिल्में बनाते रहता। नहीं किया वो, इसलिए बजरंगी पैदा हुई, बजरंगी के बाद कुछ और अलग करने की कोशिश करी, तो अब ये ट्यूबलाइट आ गई है। तो आई थिंक वो प्रेशर नहीं ले रहे हम, अगर हो जाए तो वाह बहुत मज़ा आएगा, लेकिन उस प्रेशर के साथ हम आगे नहीं बढ़ रहे। We'll take the last 2 questions. एक और सवाल है सर, सलमान सर प्रेजेंट नहीं है तो क्या कारण है इसका? सलमान अपनी दूसरी फिल्म शूट कर रहे हैं अबू धाबी में, टाइगर जिंदा है, तो इसलिए इस टाइम वो नहीं हो सकते हैं। जब वो बीच में आएंगे तब एक और कुछ इवेंट हम करेंगे। कबीर सर, आपसे मिलना नहीं हो पाया था इस बीच, तो खबरें थी कि ये किसी फिल्म से प्रेरित है या अडेप्ट की गई है, इसमें ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है, एक छोटी फिल्म बनाई गई थी कॉल्ड द लिटिल बॉय, तो उसका स्टोरी राइट्स हमने लिए थे, बिकॉज वो कहानी अलग है, वो रिलीजन के बारे में है, अलग छोटे बच्चे के बारे में, लेकिन उसका एक सीड ऑफ द आइडिया हमें अच्छा लगा था, तो हमने फिल्म मेकर से पूछा कि हम इसको अडेप्ट करना चाहते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, हमारे सिचुएशन में, तो दे एग्रीड, और फिर वहाँ से हमने वो राइट्स लेके फिर हमने स्क्रीन प्ले डेवलप किया। All right, thank you very much. Thank you. Good evening. We'll take the last question. Thank you. Hi, good evening, sir. I am Tushar from Red FM. Sir, मूवी में हीरोइन कौन है? मूवी में हीरोइन एक बहुत ही फेमस चाइनीज एक्ट्रेस जूजू, उनका नाम है, वो हीरोइन है। ठीक है सर। उनका एक शॉट था इसमें टीजर में। थैंक यू सर। All right, thank you very much, and it's time for a photo op.